So hello everyone, my name is Amar Sheikh, as you already probably know from Amar's Vision, and today I am going to be making a vlog from Preston to Houston, Texas, all the way. So it's going to be a very long journey. Let me just explain to you the route briefly as to how the whole journey is going to work. So basically, we're going to be traveling from, we're going to take an Uber or a cab, in other words, from Preston to Manchester, and from there we are going to take a domestic flight from Manchester to London. From London, we're gonna have another 10-hour flight. We're gonna have like a 5-6 hour transit first, and then we're gonna take a flight to Houston, almost a 10-hour flight, and then we will finally reach our destination, Houston, Texas. So stay tuned, everybody. So guys, आखिरकार हम चेक इन हो चुके हैं अपने मैनचेस्टर एयरपोर्ट के ऊपर. बहुत ही लंबी चेक इन लाइन थी, बहुत ही ज़्यादा ओवरली वेलमिंग लंबी चेक इन लाइन थी. बल्कि लड़ाइयाँ भी हो गई थी क्योंकि दो फ्लाइट्स थी. हमारी 7:50 वाली थी, एक 7 o'clock वाली थी. तो 7 o'clock और 7:50 की रश के अंदर जो है बड़ा मिक्सअप भी हुआ, बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई. तो आखिरकार वी हैव रीच्ड द चेक इन एरिया एंड तो अब हम बस अपनी लंदन की फ़्लाइट की तैयारी कर रहे हैं. फिर लंदन की आई थिंक अराउंड 40 मिनट्स की फ़्लाइट होगी. तो आफ्टर दैट यार आई कीप यू अपडेटेड कि क्या होता है. तो फ़िलहाल तो अभी मैनचेस्टर एयरपोर्ट के ऊपर नाश्ता तो मैंने कर लिया था, सीरियल खा लिया था मैंने एक, और दूध पी लिया था. तो आई थिंक दैट होपफुली शुड बी इनफ फॉर द होल जर्नी. यार तो मुझे लगता है कि नहीं होगा, आई डोंट थिंक इट्स गोना बी इनफ, लेकिन यार लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर. लंदन जब हम पहुंचेंगे तो फिर मैं अब आपको बताऊंगा कि हम लंदन में किधर पहुंचे हैं और क्या करना है. और there's a lot to do here. So if you're traveling to Manchester airport, just keep in mind कि there will be a lot of things. अगर आप breakfast करना चाहते हैं वहाँ पे, you could easily go to Starbucks or Costa Coffee. Greg's भी, if I'm not wrong, Greg's भी शायद मौजूद है यहाँ पे. I mean, I'm not really sure about that, but yeah. So, but you're going to have a really good time. So guys, वेट करते करते तो मैं काफ़ी बोर हो गया था, तो मैं I decided to explore the airport. And as I previously mentioned, there is a Starbucks over here along with other boutiques also that you can check out while you're waiting for your flight. जैसे ये आप देख सकते हैं Starbucks यहाँ पे है. काफ़ी यहाँ पे जो है रश था, तो इसलिए मैं गया नहीं. तो उसके अलावा जो है ड्यूटी फ्री भी यहाँ पे मौजूद है. ड्यूटी फ्री के अंदर इट्स बाय द नेम ऑफ वर्ल्ड ड्यूटी फ्री एट मैनचेस्टर एयरपोर्ट. तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे चॉकलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, डिफरेंट काइंड्स. यहाँ पे आप इनकी प्राइसेस भी आप सही तरह से पढ़ सकते हैं. उसके अलावा परफ्यूम्स यहाँ पे मौजूद हैं, स्किन केयर फैसिलिटीज़, परफ्यूम्स ऑफ ऑल डिफरेंट रेंजेस फॉर मैन, वुमेन, so you can buy those and you can check them out. It's pretty cool. The price tags are mentioned over here as well. So yeah, and I believe you can pay in any currency, like US dollars, dirhams, whatever. I believe that's how it is. Champagne bottles भी यहाँ पे मौजूद हैं. Since मैं drink करता नहीं हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि इसकी क्या वो हैं, what information. I don't really have that much information about champagne and alcohol since I really don't drink. So, but here, if you guys do drink, if any one of you, I mean, there you have it, the champagne bottles, and yeah, I mean, that's all in all, it's a pretty cool airport. There you have the world duty free title over there, and yeah, that's how it is. Alright guys, we're on the way to our gate. D7 था ना हमारा गेट? हाँ, D7 हमारा गेट है. तो अब हम जा रहे हैं उस तरफ.
and let's see how it goes. So guys, आखिरकार हम लंदन एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। ये था हीथ्रो एयरपोर्ट, लंदन हीथ्रो था, नॉट लंदन गैटविक। तो यहाँ का अनलाइक मैनचेस्टर जो है बहुत ही बिजी एयरपोर्ट था, बहुत ही हसल और बसल यहाँ पे मौजूद थी। You know, a lot of people were over here, very crowded, although it was a very fancy kind of an airport। जैसे आप देख सकते हैं ये बुटीक्स वगैरह यहाँ पे जो है ह्यूगो बॉस के शॉल की, ह्यूगो बॉस, अरमानी, लुई विटॉन एंड ऑल दीज अदर ब्रांड्स की शॉप्स आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। सो इट्स अ गुड शॉपिंग प्लेस टू इफ़ यू हैव अ लॉन्ग ट्रांजिट, लाइक जैसे मेरा मुझे याद है यहाँ पे WH स्मिथ की एक और ब्रांच भी आप देख सकते हैं। तो लाइक मेरा क्योंकि 7-8 घंटों का एक वो था स्टे था, और तो आई गॉट अ चांस टू रोम अराउंड दीज बुटीक्स एंड ब्रांड्स। तो it's a good shopping site, you can visit these shops and everything। एक अच्छी एक शॉपिंग मॉल वाली फील आती है। You can roam around and have like a good time over here। but obviously मेरा तो यहाँ पे बुरा हाल हुआ था क्योंकि मैं जो हूँ वो अपेरेंटली लाइक वो जैसे आप देख सकते हैं और ड्यूटी फ्री यहाँ मौजूद है। So I was like basically completely tired by this point, you know even though I was roaming around, I had a cup of coffee, लेकिन I was completely flushed out of energy and I was just waiting for my flight to Houston, जो कि एक और 10 घंटों की फ़्लाइट होने वाली थी। तो काफ़ी टायरिंग जर्नी थी, लेकिन लंदन एयरपोर्ट ऑल एंड ऑल वाज वेरी वेरी बिजी बट वेरी वेरी गुड एट द सेम टाइम। मतलब ये काफ़ी एक हसल बसल थी। और ये वर्ल्ड ड्यूटी फ्री आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मौजूद है। ये सारी यहाँ पे जो everything you can find over here, one of the best duty frees I've ever seen। ऑलराइट गाइस, मैं ह्यूस्टन फाइनली पहुंच चुका हूँ और काफ़ी एक अनथक सफ़र के बाद कल मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका क्योंकि जो है वो मैं बिल्कुल ही सफ़र के बाद थका हुआ था और मैं बस कम्प्लीटली ड्रेन आउट ऑफ एनर्जी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहा धो के ज़रा होश आई है अगले दिन। तो यही है कि इट वाज अ प्रीटी लॉन्ग, दो इमिग्रेशन के अंदर 2 घंटे हमें लग गए। 2 आवर्स हमें खड़ा होना पड़ा आफ्टर अ 10 आवर फ्लाइट। तो दैट वाज एक्सट्रीमली हेक्टिक, लेकिन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह we've reached Houston and yeah अल्हम्दुलिल्लाह it's all is good over here। यहाँ पे मतलब एक अच्छा सा कंफर्ट लेवल अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। वी फाइनली मेड इट एंड बस एक गुजारिश ये है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द व्लॉग। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल वंस अगेन। आई नो मैंने पिछले बिगनिंग ऑफ द वीडियो में भी ये कहा था, लेकिन don't forget to do that, okay? It really means a lot। And you guys take care of yourself and I will see you later। Peace।